यूकैरियोटिक सेल इन डिटेल. यूकैरियोटिक सेल मीन्स एनिमल सेल एंड प्लांट सेल. तो अभी तक हमने कुछ कंपोनेंट्स देखे हैं एनिमल सेल एंड प्लांट सेल के. सबसे पहले वी हैव सीन इफ इट इज say this is animal cell and say this is plant cell. Now this boundary of the cell is called as cell membrane. So first labeling we have seen cell membrane which is present in both plant and animal cell. Secondly we have seen this extra protection or extra covering which is present only in plant cell, and that is called as cell wall. So cell membrane and cell wall we have seen. So third labeling we have seen. So cell membrane present in both plant, animal cell and plant cell. Cell wall is present in only plant cell. Third labeling we have seen. This is nucleus, suppose from nuclear membrane to cell membrane. Suppose this is a nucleus, nuclear membrane to cell membrane. This component, this organelle is called as endoplasmic reticulum. That means endoplasmic reticulum is present in both animal cell and plant cell. Endoplasmic reticulum is present in both animal cell and plant cell. But endoplasmic reticulum के लिए हमने एक word use किया था. Endoplasmic reticulum is also called as endomembrane system. अभी हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से आगे जो भी कंपोनेंट सेल के स्टडी करने वाले हैं उनको बोलते हैं एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम. ओके, तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में आता है. नेक्स्ट लेवलिंग वी आर गोइंग टू स्टडी गोल्जी एपरेटस या फिर गोल्जी बॉडीज बोलो, वो भी दैट ऑल्सो कम अंडर एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम. तो अभी हम लोग क्या स्टडी कर रहे हैं? यूकैरियोटिक सेल. यूकैरियोटिक सेल के पार्ट स्टडी कर रहे हैं, बट उसमें हमने सेल मेम्ब्रेन एंड सेल वॉल स्टडी होने के बाद हम लोग जो थर्ड लेवलिंग से जो भी कंपोनेंट्स अब हम वी आर नाउ गोइंग टू स्टडी दे आर कॉल्ड एज एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम. अभी हम लोग एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के अंदर एक स्टडी हो गया हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वी हैव स्टडी. इट इज फाउंड इन बोथ प्लांट सेल एंड एनिमल सेल. नाउ वी विल मूव टू गोल्जी एपरेटस. गोल्जी भी वैसा ही है. Golgi apparatus is also found in plant cell and animal cell. But Golgi apparatus and endoplasmic reticulum, they are also called as endomembrane system. So let us move ahead with Golgi apparatus, animal cell and plant cell. So our next labeling is Golgi apparatus. Golgi apparatus है, but it also comes under endomembrane system. So endoplasmic reticulum and Golgi apparatus come under endomembrane system. So let us see structure of Golgi apparatus. Suppose this is a cell. Consider plant cell है या फिर animal cell है, because Golgi is present in both cells. And this is nucleus. Endoplasmic reticulum we have already seen. Endoplasmic reticulum. Okay. Generally this Golgi apparatus is near to nucleus or near to endoplasmic reticulum. Endoplasmic reticulum या फिर nucleus के पास रहेगा हमेशा Golgi, and it looks like this. ऐसे आपको you will see parallel sacs. Okay, this is called as Golgi apparatus या फिर Golgi body या फिर Golgi apparatus. This is Golgi apparatus. This was discovered by Camillo Golgi. Camillo Golgi नाम के साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया. He found that कि एक डेंसली स्टेन्ड स्ट्रक्चर मतलब डार्क कलर का स्ट्रक्चर न्यूक्लियस के पास है और वो रेटिक्युलर है. रेटिक्युलर मतलब जाली जैसा, रेटिक्युलर.
लाइक अ मेश, ठीक है। सो कमिलो गोल्गी ने फाइंड किया कि देर इज सम डेंसली स्टेन्ड मीन्स डार्क कलर स्ट्रक्चर नियर न्यूक्लियस विच इज रेटिक्युलर, जाली जैसा है, ओके, एंड दैट स्ट्रक्चर वॉज गिवन नेम गोल्जी बॉडीज या फिर गोल्जी apparatus. It is near nucleus. So Golgi apparatus, it is found in both cells, animal cells and plant cells, discovered by Camillo Golgi. What did he say? It is a densely stained structure, means dark color, reticular है मतलब जाली जैसा है, and it is near nucleus, near न्यूक्लियस, ओके। नाउ अगर हम इसको पास से देखते हैं गोल्जी को, तो इट विल लुक लाइक दिस। सिर्फ आपको ऐसे ये ऐसे फ्लैट डिस्क दिखेगी जो पैरेलल है, ओके, एंड दिस डिस्क्स आर कॉल्ड एज सिस्टर्ने, सिस्टर्ने या फिर सैक्स बोलो इनको, सिस्टर्ने, single is cisterna, plural is cisterne. These discs which are parallel are called as cisterne. देखो parallel sacks दिख रही है, इससे ऊपर parallel ये parallel sacks, तो Golgi is like this, एक parallel sacks है, एक के ऊपर एक ऐसे parallel sacks है, very small in diameter, and इसके साथ आजू बाजू में आपको you will find, जैसे हमने mesosomes में देखा था, small tubules. What we call small tubules? Small tubules को हम क्या बोलते हैं? Small tubes को हम बोलते हैं tubules. So tubules, and you will find this structure also, and this structure is called as, it closely, आपको ऐसे नहीं दिखेगा, you will find cisternae, vesicles and tubules. So let us take a close look of Golgi apparatus. It will look like this. ऐसे ये ऐसी sacs है which are parallel. Parallel sacs को we call them cisternae. Okay? So parallel sacs are called as cisternae. Means sacs which are parallel. Second thing, you will find small tubes. Small tubes are called as tubules. And third thing you will find near the Golgi, small sacs, circular sacs, which are called as vesicles. So Golgi, this Golgi apparatus is made up of three things: cisternae, tubules and vesicles. Okay, this Golgi looks like this. Now come to function of the Golgi apparatus. So Golgi apparatus के तीन parts हमने देखे: cisternae, parallel sacs, cisternae, tubules, small tubes, tubules and vesicles. Now come to function of Golgi. के कौन से component के पास है? This is present near endoplasmic reticulum and nucleus. ओके, तो गोल्जी का फंक्शन होता है, ये जो गोल्जी apparatus का फंक्शन है पैकेजिंग करना, पैकेजिंग। सपोज आप मार्केट में जा रहे हो एंड यू परचेस अ कोल्ड ड्रिंक, सॉफ्ट ड्रिंक परचेस किया आपने, तो यू माइट सी कि वो जो बॉटल होती है सॉफ्ट ड्रिंक की, उसके ऊपर इफ़ यू वांट कोक यू विल फाइंड द नेम कोक लिखा रहेगा, किसी बॉटल के ऊपर मिरिंडा लिखा रहेगा, एंड कोई बॉटल के ऊपर थम्स अप लिखा रहेगा, एंड इफ़ यू वांट टू परचेस थम्स अप यू विल सी दैट लेबल, राइट, लेबल देख के, मतलब पैकेजिंग, दैट इज कॉल्ड एज पैकेजिंग, दैट यू विल सी कि इसके ऊपर थम्स अप लिखा है, दैट वी विल परचेस। सिर्फ अगर बॉटल रख दी विदाउट दैट लेबल, जिसके ऊपर कुछ भी नहीं लिखा है, थम्स अप नहीं लिखा है, कोका कोला नहीं लिखा है, मिरिंडा नहीं लिखा है, हाउ कम यू विल कम टू नो? कलर से थोड़ा सा मिरिंडा आप डिफरेंशिएट कर सकते हो ऑरेंज कलर से, बट
कोका कोला एंड थम्स अप, यू कैन नॉट डिफरेंशिएट विदाउट लेबल. लेबल जो होता है, लेबल से ही हम जान पाते हैं ना, दिस इज थम्स अप, दिस इज कोका कोला, क्योंकि इसके ऊपर लिखा है. और वो जो लिखा हुआ लेबल है वही हमने निकाल दिया, तो हम डिफरेंशिएट नहीं कर पाएंगे विच इज थम्स अप एंड विच इज कोका कोला, राइट. तो दिस इज कॉल्ड एज पैकेजिंग. पैकेजिंग मतलब यू कम टू नो कि दिस इज दिस थिंग, राइट. तो गोल्जी का काम क्या है? पैकेजिंग करना. तो क्या पैकेज करता है देखो. एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में हमने देखा था 2 थिंग्स. यहाँ पे दिस इज कॉल्ड एज रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ ER, राइट. एंड दिस इज रिस्पॉन्सिबल टू सिंथेसाइज प्रोटीन्स, राइट. रफ क्या बनाता है? प्रोटीन्स बनाता है. एंड स्मूथ ER synthesizes lipids, राइट. लिपिड्स. तो इतना क्लियर हो गया कि यहाँ पे लिपिड्स और प्रोटीन्स बनते हैं, मतलब सिर्फ बनते हैं, उनका पैकेजिंग नहीं होता है. अभी हमने देखा ना पैकेजिंग, हाउ इम्पोर्टेंट इज पैकेजिंग. तो ये यहाँ पे बनने के बाद, जैसे हमने देखा कोक एंड थम्स अप जो बन गया है, यहाँ पे तो बन गया है, बॉटल में सेम कलर का है, बट उसके ऊपर अभी क्या होना चाहिए? पैकेजिंग होना चाहिए, लेबल लगना चाहिए, राइट. तो अभी ये यहाँ पे तो बन गया है, क्या बन गया है? लिपिड्स बन गया है, प्रोटीन्स बन गया है. So these lipids and proteins will come to Golgi for the packaging. Okay? इनके ऊपर अभी लेबल लगेगा, पैकेज हो जाएंगे. So let us see. Now suppose this is protein जो कहाँ पे बना था? रफ ER में बना था. And this is lipid सिंथेसाइजिंग स्मूथ ER. तो प्रोटीन और लिपिड बनने के बाद किसके पास आ गए? गोल्जी apparatus के पास. फॉर व्हाट पर्पस? फॉर द पैकेजिंग, फॉर द लेबलिंग. नाउ दिस प्रोटीन एंड लिपिड विल एंटर इनसाइड द गोल्जी. गोल्जी के अंदर एंटर हो जाएंगे ये. दे विल एंटर इनसाइड दिस पार्ट, दिस एंट्री पार्ट. ये जो गेट दिख रहा है जहाँ से प्रोटीन एंड लिपिड्स एंटर कर रहे हैं, how is this face? This part is convex, right? देखो convex. This part या फिर this entry point जहाँ से proteins and lipids are entering the Golgi is called as convex. देखो इसका shape, it is convex. This is convex, this is concave. Okay? Convex, concave. तो ये कैसा है? This is convex. And this part is called as, convex part is called as cis phase. ये जो एंट्री है इसको बोलते हैं cis phase. जहाँ से proteins and lipids will enter inside the Golgi. So what is cis phase? Cis phase is a convex part of the Golgi body जिससे proteins and lipids enter होंगे. Now once they enter, Golgi में जब enter हो जाएंगे, inside the Golgi there are lots of enzymes. यहाँ पे बहुत सारे कुछ enzymes हैं जो इन पे काम करेंगे. क्या करना है इनको? जैसे फॉर एग्जाम्पल दिस इज थम्स अप एंड दिस इज कोक. तो ये तो बन गए हैं, बट अभी इनको क्या करना है? पैकेजिंग करना है, राइट. तो गोल्जी में ये एंजाइम्स क्या करेंगे? इनका पैकेजिंग. तो एज दे मूव डाउन दे विल गेट पैकेज्ड. अभी ये प्रोटीन था, ये लिपिड था, तो दिस देखो पैकेज. मॉडिफाई होना, इसको क्या बोलते हैं? मॉडिफाई हो गए, ये प्रोटीन्स मॉडिफाई हो गए, पैकेज्ड हो गए, इनके ऊपर पैकिंग लग गया. एंड नाउ दे विल कम आउट. गोल्जी से बाहर आ जाएंगे, क्योंकि गोल्जी से बाहर यहाँ पे आएंगे क्योंकि सेल को उनकी ज़रूरत है. सेल वांट देम. प्रोटीन एंड लिपिड्स का काम किसको है? सेल को है. तो गोल्जी से एंटर हुए, ये यहाँ पे बने. लिपिड्स एंड प्रोटीन्स आर सिंथेसाइज्ड हियर. Then as soon as they are synthesized, they will enter Golgi. Golgi में they will be modified.
देखो मॉडिफाई हो गए एंड दे विल कम आउट. नाउ दिस फेज, दिस गेट, दिस एग्जिट पॉइंट, दिस एंट्री पॉइंट वॉज, ये जो एंट्री पॉइंट था दिस वॉज कॉन्वेक्स, राइट. कॉन्वेक्स को हमने क्या बोला था, सी स्पेस बोला था. एंड नाउ दिस एग्जिट पॉइंट देखो कैसा है, दिस इज कॉन्वेक्स, दिस इज कॉन्केव. दिस एग्जिट पॉइंट इज कॉन्केव. यू कैन सी इट इज कॉन्केव, कॉन्केव. ये एग्जिट पॉइंट को बोलते हैं ट्रांसफेज. ट्रांसफेज, ट्रांसफेज के थ्रू these proteins and lipids will come out. But how are they now? अभी वो कैसे मॉडिफाइड है, राइट. पहले जैसे एंटर हुए थे वैसे नहीं है. देखो यहाँ पे मॉडिफाइड है. दे आर पैकेज्ड नाउ. पैकेजिंग हो चुका है उनका, राइट. पैकेजिंग हो चुका है. दिस इज प्रोटीन, दिस इज लिपिड. बट नाउ दिस इज नॉट कॉल्ड एज प्रोटीन. ये पैकेजिंग हो गया ना इसका. नाउ दिस इज कॉल्ड एज, ये प्रोटीन था ना, नाउ दिस इज कॉल्ड एज ग्लाइकोप्रोटीन. Glycoprotein, and this lipid is now packaged and it is called as glycolipid. Okay, so enter हुए थे proteins and lipids. Proteins and lipids got modified inside the Golgi. Modified का मतलब यहाँ पे है packaged, packaging. उनका क्या हुआ, पैकेजिंग हुआ एंड दे केम आउट ऑफ कॉन्केव ट्रांसफेज एंड दे गॉट कन्वर्टेड इनटू ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड. दिस इज द यूजेबल फॉर्म. अभी सेल इनको यूज कर सकता है. ओके, प्रोटीन्स एंड लिपिड्स एंटर्ड थ्रू कॉन्वेक्स पार्ट कॉल्ड एज सी स्पेस एंड कॉन्केव पार्ट ऑफ द गोल्जी इज कॉल्ड एज ट्रांसफेज. सी स्पेस से प्रोटीन्स एंड लिपिड्स एंटर हो गए एंड ट्रांसफेज से वो क्या होंगे, एग्जिट होंगे, बाहर आएंगे एंड दे विल बी मॉडिफाइड इनटू ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड. सो दिस इज द फंक्शन ऑफ गोल्जी बॉडी टू पैकेज. ये जो प्रोटीन एंड लिपिड्स है ये पैकेजिंग. तो दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज पैकेजिंग फैक्ट्री. Golgi body is also called as packaging factory. Proteins are converted into glycoprotein and lipids are converted into glycolipids. So convex phase, convex part is C phase and concave part is trans phase. Convex and concave, that you have to remember. And proteins कौन से phase से enter होते हैं, C phase, C phase. And they exit after packaging, they exit through transphase. Karyotic cell के हमने कुछ parts देखे हैं, कुछ components देखे हैं. Suppose it is plant cell. This is cell membrane and this is cell wall, right? अगर animal cell है तो cell wall is not present, only cell membrane is present. So first labeling we have seen cell membrane, second labeling we have seen cell wall which is present. Cell membrane is present in both cells, plant cell and animal cell, and cell wall is present in only plant cell. Third labeling we have seen, what was the third labeling we have seen, endoplasmic reticulum, right? So ये न्यूक्लियस एंड न्यूक्लियस के पास एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इट वाज आवर थर्ड लेबलिंग ER, and endoplasmic reticulum is present in plant cell as well as animal cell. तो animal cell में भी present है, okay, ER. Now fourth labeling we have seen जो endoplasmic reticulum के पास ही होता है, that is Golgi body. That was our fourth labeling, and Golgi is present in plant cell and animal cell, both. So Golgi, okay. But this endoplasmic reticulum and Golgi body, endoplasmic reticulum and Golgi body, ये जो दो labelings हमने देखे हैं, they come under endomembrane structure या फिर endomembrane system, right? So हम लोगों ने अभी तक 4 लेबलिंग्स देखे हैं, 4 कंपोनेंट्स देखे हैं यूकैरियोटिक सेल के.
सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, गोल्जी बॉडीज एंड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। उसमें से गोल्जी एंड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आर ऑल्सो कॉल्ड एज एंडोमेम्ब्रेन स्ट्रक्चर। So endomembrane structure में endoplasmic reticulum and Golgi bodies we have seen. Now next labeling या फिर next part of the cell is lysosome, और वो lysosome भी endomembrane system है, endomembrane structure है. So let us study lysosome now. Lysosome now, consider this as a cell. ये cell है, कोई भी एक cell है. नाउ लाइजोसोम जो हम पार्ट सेल का स्टडी कर रहे हैं, इट इज प्रेजेंट इन बोथ प्लांट एंड एनिमल सेल. तो कंसिडर ये प्लांट सेल है या फिर एनिमल सेल है. तो लाइजोसोम जो है जनरली हमने अभी ये देखा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वी हैव जस्ट स्टडी, एंड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास ही क्या होता है, गोल्जी बॉडी, राइट. गोल्जी इज देयर. This lysosome is actually formed from Golgi. तो lysosome always Golgi के पास रहेगा, Golgi body के पास रहेगा, because lysosome Golgi body से ही form होता है. ये this you have to keep in mind. So lysosome, ये this is our lysosome. Endoplasmic reticulum, Golgi body, lysosome, all come under endomembrane system. ठीक है. So our fifth labeling is lysosome. What is lysosome? Lysosome is formed by Golgi complex, so it will be near to Golgi को body. जैसे Golgi जो है वो ER के पास रहेगा हमेशा, ये ER and Golgi will be close to each other, and Golgi के पास हमेशा क्या रहेगा, lysosome रहेगा, because Golgi से ही lysosome form हुआ है. Okay, now what it is? क्या है ये? What is simple sac? लाइजोसोम का स्टडी कर रहे हैं हम, लाइजोसोम. तो इट इज सिंपल सैक. इट इज प्रेजेंट इन बोथ सेल्स, एनिमल सेल में भी प्रेजेंट है, प्लांट सेल में भी प्रेजेंट है. सैक जैसा है, मेम्ब्रेन बाउंड है. देखो ऐसे मेम्ब्रेन दिख रहा है क्लियर, मेम्ब्रेन बाउंड है, तो इसको बोलते हैं मेम्ब्रेन बाउंड, मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर. ओके. और सैक है ना, सैक मतलब एक खाली जगह. तो दिस सैक इज कॉल्ड एज वेसिकल. वेसिकल, तो एक सैक है, एक खाली जगह है, उसको बोलते हैं लाइजोसोम. मेम्ब्रेन बाउंड मतलब तुमको मेम्ब्रेन दिख रहा है, एंड सैक को क्या बोलते हैं, वेसिकल मतलब सैक. सैक लाइक स्ट्रक्चर है ये. ठीक है. कैसे फॉर्म हुआ है ये, गोल्जी. इट इज फॉर्म फ्रॉम द गोल्जी. सपोज दिस इज गोल्जी, गोल्जी. तो गोल्जी से ही फॉर्म हुआ है. गोल्जी का कुछ पार्ट सेपरेट हो गया एंड क्या बन गया, लाइजोसोम. गोल्जी एंड दिस इज लाइजोसोम. गोल्जी से फॉर्म हुआ है. गोल्जी में हमने देखा था, गोल्जी में क्या होता है, पैकेजिंग होता है. तो वाइल पैकेजिंग में कुछ यहाँ पे कुछ केमिकल रिएक्शंस होती है, जिसकी वजह से ये लाइजोसोम फॉर्म होता है. नाउ व्हाट इज इनसाइड दिस, लाइजोसोम के अंदर क्या है. तो लाइजोसोम के अंदर हमेशा याद रखना, ऑलवेज दिस विल कम, कीप इन माइंड, लाइजोसोम के अंदर एंजाइम्स है. बिकॉज वी नो लाइजोसोम किससे बना है, गोल्जी से बना है, एंड गोल्जी के अंदर क्या होते हैं, एंजाइम्स होते हैं, राइट. तो लाइजोसोम के अंदर भी एंजाइम्स है, बट दोज एंजाइम्स आर वेरी स्पेशल एंजाइम्स. उनको बोलते हैं हाइड्रोलिटिक, हाइड्रोलिटिक enzymes. Okay, so this is lysosome. What is lysosome? Lysosome is a sac. Sac मतलब vesicle, and it is formed from Golgi. Golgi से form हुआ है. And what it contains? Lysosome के अंदर क्या है, enzymes है. But कौन से enzymes? बहुत special enzymes है, hydrolytic enzymes. So let us study about hydrolytic enzymes now. But before that, you make it very clear, endoplasmic reticulum के पास क्या रहेगा, गोल्जी, एंड गोल्जी से ही क्या बनता है, लाइजोसोम. ओके. तो लाइजोसोम इज मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर. इट इज वेसिक्यूलर मतलब सैक लाइक. सैक जैसा एक सैक है, किससे फॉर्म होता है, गोल्जी. गोल्जी बॉडी से फॉर्म होता है लाइजोसोम. और लाइजोसोम के अंदर क्या है, व्हाट इज देयर इनसाइड द लाइजोसोम,
तो लाइसोसोम के अंदर क्या है, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स है। नाउ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को याद करो, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में इस पार्ट को बोलते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड दिस इज कॉल्ड एज स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। यहाँ पे प्रोटीन्स बनते हैं और यहाँ पे लिपिड सिंथेसाइज होते हैं एंड प्रोटीन्स एंड लिपिड सिंथेसाइज हियर कम टू गोल्गी। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जो प्रोटीन एंड लिपिड सिंथेसाइज होते हैं वो यहाँ से यहाँ आते हैं गोल्गी में, क्यों, फॉर द पैकेजिंग, राइट। और वो क्या बन जाते हैं, ग्लाइकोप्रोटीन्स एंड ग्लाइकोलिपिड्स। नाउ गोल्गी